So I am just drawing the graph once again here, and while drawing the graph, you all know that what is the procedure. Procedure is to draw the branches with dark line and the links with the dotted line, right? So this is the procedure. So I am drawing the graph once again here. So this is the branches which I have drawn right now. So whenever we will draw the branch, we have to draw the branch with dark line and the link with the dotted line. So one by one, I will close the link, and when I will close the link, there will be a closed path which will be forming. Okay, I am repeating it once again. Whenever we will close the link, there will be a formation of a closed path. Okay, how? Let us draw. Let us close the link with the help of the different color which I am using. You can see here I am closing the element number 4, which is a link. Okay, so element number 4 I have closed. Because of this element number 4, there is a closed path which is forming. Is it clear, everyone? Can you all see the closed path? Is it visible, everyone? What is the closed path? So let me draw this closed path. So this closed path is in this way. That is, this closed path will be in the direction of the link. So what is the direction of the link? Direction of the link is towards right. So I have to make this direction also in this way. Okay, so the direction of this will be also in this way. So this loop will move in this direction. From here it will move in this direction, then in this direction, and again go back in this direction. Okay, is it clear? So this is the loop which is formed by closing this particular link, that is link number 4, element number 4. When I close this element number 4, then there will be a formation of a loop. This loop is called as the basic loop. Is it clear, everyone? The name of the matrix which we are writing here is basic loop incidence matrix. So when this basic loop will form, this basic loop will be formed when we will close the link. Okay, so one by one we have to close the link, and because of closing the link, we will be getting a loop. That loop will be called as the basic loop. Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? We are closing the link, we are forming with the loop, and this loop is called as basic loop incidence matrix. Okay, now so tell me, what will be the number of basic loops? How many basic loops will be formed in this particular problem? As in the previous fourth number of the matrix, that is basic cut set, we have written a formula, that is number of basic cut sets is equal to number of branches. Similarly, we have to write the formula here, number of basic loop is equal to number of links. Is it clear, everyone? So the number of link will be 2. Is it clear, everyone? So number of basic loop will be equal to 2. Why? Because the number of link in this particular problem is equal to 2. Alright, is it clear, everyone? If the concept is clear, then you can very well make it out how many loops will be there in this particular problem. Okay, so as you know that we name the nomenclature starting with the branch. So as the branches are here 1, 2 and 3, the name which will be associated with this particular branch will be A for 1, B for 2 and C for 3. So for this particular 4, what will be the name? The name will be D. Is it clear, everyone, why I am taking the name D? Because the nomenclature starts with the branch and then it goes with the link. So if I take the branch is 1, 2 and 3. So the name associated with the branches will be A for 1, B for 2 and C for 3. So for 4, what will be the name? For 4, the name will be D. Is it clear, everyone? So that's why I will write here D is equal to. So I will write the set of contents which will be there for D.
So tell me what will be the contents. The first content will be 4. Why? Because as I have closed 4, then only the loop has formed, and this loop has moved in the direction of this particular element. So I will write here one by one what will be the contents of this set D. So first of all 4, then you can see 4, then 2, then 1, and then 3. So 4, 2, 1, and 3. This will be the contents of the set D. Is it clear, everyone? Is there any difficulty to write the contents of the set D? Because we have two number of links, that's why one by one we will be taking. So one is completed. Next link is element number 5, right? So then I will close the element number 5. So let us do that. So element number 5 will be closed in this way. This is element number 5. The particular system, when you are choosing only the link with the help of the other branches. That means when you are closing a link, at that time only one link should be there, rest of the things should be branches. Is it clear, everyone? Like when I say that 4 and 5, these are the, what is 4 and 5? 4 and 5 are linked, right? So this we have already seen. 4 and 5, these two elements are links. So when we close 4, the name of the loop we have given as D, and when we close 5, the name of the loop that will be made will be given as E, right? So when we have the D and E, what is happening is when you close 4, in the combination there should be branches, there should be no links at all. Again when you close 5, there should be branches in combination and not the links. Is it clear, everyone? सबको समझ में आया क्या बोला मैंने? लिंक जब क्लोज करोगे तो लिंक के साथ में बाकी के क्या? ओके फाइन. सो we were in the basic loop incidence matrix और हमने एक लूप बना लिया था. सो डी में किसी को कोई प्रॉब्लम? डी का जो लूप बना उसको समझने के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम? डी में किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके. सो व्हेन वी कम टू ई, जब हम ई का लूप बनाएंगे तो ध्यान से देखो ग्राफ के तरफ, ठीक है? सब लोग ग्राफ के तरफ ध्यान से देखो. इफ रिक्वायर्ड आई विल ड्रॉ द ग्राफ वंस अगेन. फिर से मैं यहाँ पर दूसरा ग्राफ बनाता हूँ. यहाँ पर ध्यान से देखो सभी, बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच एवरीवन शुड गेट क्लियर्ड. अदरवाइज आप लोगों को बेसिक लूप इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने में दिक्कत जाएगी. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, देखो यहाँ पर मैं फिर से समझाने के लिए और एक ग्राफ बना रहा हूँ. 1, 2 और 3 ये हमारे ब्रांचेस थे, और 4 ये हमारा लिंक था, और ये 5 भी हमारा लिंक था. तो 4 को क्लोज करके हमने डी ऑलरेडी लिख दिया, तो मैं 4 पे नहीं जाऊंगा. ठीक है, 4 पे नहीं जाते हम. अब देखो जब आप 5 क्लोज करोगे, मतलब ये जो 5 आप क्लोज कर रहे हो, तो 5 क्लोज करने से आप लोगों को ऐसा दिख रहा है कि 2 लूप बन रहा है ना? मतलब 5 अगर क्लोज हो रहा है तो एक लूप ये बन रहा है और एक लूप ये बन रहा है. तो हमने कौन सा लूप लेना, ये हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन आ जाएगा. आएगा कि नहीं आएगा बताओ, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, आएगा कि नहीं आएगा? जब आप 4 को क्लोज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि एक ही लूप बन रहा था. लेकिन जैसे ही आपने 5 को क्लोज किया, आपको दिखा कि यहाँ पे 2 लूप बन रहा है. तो कौन सा लेना, हमने कौन सा लूप लिया तो सही होगा? तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप लूप लोगे तो लूप लेते समय एक ही लिंक रहना चाहिए, बाकी के सारे ब्रांचेस रहने चाहिए. क्या रहने चाहिए? बाकी के सारे लिंक के कॉम्बिनेशन में बाकी के सारे क्या रहने चाहिए? ब्रांचेस रहने चाहिए. तो अब बताओ, अगर आप ये ऊपर वाला लूप लोगे तो इस लिंक के साथ में कॉम्बिनेशन में और एक क्या है? ये जो 4 है ये क्या है, लिंक है कि ब्रांच है? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में. अगर हम लोग ये ऊपर वाला लूप लेते हैं तो ऊपर वाले लूप में ये 5 के साथ में और एक कौन है?
5 के साथ में और एक लिंक है, तो बताओ ये ऊपर वाला लूप चलेगा क्या? ऊपर वाला अगर लूप लोगे तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमें लिंक का एक ही चाहिए, बाकी के सारे डार्क लाइन चाहिए। मतलब बोलने का मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, एक ही डॉटेड लाइन चाहिए, बाकी के सारे डार्क लाइन चाहिए, तभी वो लूप कंसिडर होगा, अदरवाइज वो लूप कंसिडर नहीं होगा। ऑलराइट, सो अब बताओ मुझे लूप कौन सा होना चाहिए? फिर लूप होना चाहिए ये वाला। बराबर समझ आया सभी को? लूप कौन सा होना चाहिए? फिर ये 5 से स्टार्ट होना चाहिए, फिर ये 2 पे जाना चाहिए, फिर 1 पे जाना चाहिए और फिर 3 पे जाना चाहिए। बराबर समझ में आया सभी को? बेसिक लूप विल बी ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिंक, और एक एक करके लिंक को क्लोज करते जाना है, और लिंक को क्लोज करने के बाद जो लूप बनेगा उस लूप को कंसिडर करके बेसिक लूप को लेना है। ओके, सो डी मैंने ऑलरेडी ले लिया था। अभी ई के लिए सेट हम लिखेंगे, तो ई के लिए फिर से सेट हम लिखेंगे, तो क्या होगा ई के लिए सेट में? ई के लिए जब हम सेट लिखेंगे तो लेट्स सी, मैंने ई के लिए ऑलरेडी यहाँ पर बना दिया है। ओके, सो इज इट विजिबल? सबको दिख रहा है? ई के लिए मैंने ऑलरेडी लूप बना दिया है विद द डिफरेंट कलर, with this color I have maroon color, I have drawn the loop of E, please, because this is somewhat tricky, तो हमें ये ध्यान से समझना है कि D और E कैसे आएगा। और अब जब D और E का मैट्रिक्स आपने लिख लिया है, नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर मैट्रिक्स। ठीक है, आपने कंटेंट्स ऑलरेडी लिख लिया है। अब हम यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स लिखेंगे। हमारे मैट्रिक्स का नाम है C, तो हम C लिखेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 और 5, ये हम क्यों लिख पाए हैं? क्योंकि हमारे स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स है ये ब्रांचेस है, और जो बाद में के एलिमेंट्स है वो लिंक है। सॉरी, पहले वाला मेरा क्या है? डी है, इट्स नॉट ई, फर्स्ट वन इज डी, सो पहले वाला मैं लिखूंगा डी और उसके बाद मैं लिखूंगा ई। ओके, इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? सबको ध्यान में आ रहा है? ये सेट लिखने का पर्पस क्या है, सबको ध्यान में आ रहा है? हमको एंट्रीज किस तरीके से मिलेगा वो हमें समझना है ना? और एक भी एंट्री अगर छूटता है तो हमारा मैट्रिक्स गलत हो जाएगा, इसीलिए सारे के सारे एंट्रीज आने चाहिए। जैसे डी है तो 4 2 1 3, मतलब 4 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना? 5 नहीं आएगा उसमें। सिमिलरली जब ई का कॉलम आप फिल करोगे तो ई के कॉलम में 5 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ऑल राइट, इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? अब प्लस कौन रहेगा, माइनस कौन रहेगा, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, सो प्लस कौन रहेगा, माइनस कौन रहेगा, ये देखो अभी सबसे पहले। अब मुझे बताओ, जब हमने डी लिया तो डी का जो डायरेक्शन है हमने किस पे से लिया? ये जो डी का जो डायरेक्शन आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये जो डी का डायरेक्शन है ये किस पे से सेट हुआ? 4 पे से सेट हुआ, मतलब 4 का डायरेक्शन और डी का डायरेक्शन सेम है। तो मुझे बताओ डी के कॉलम में 4 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? डी के कॉलम में 4 पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? क्योंकि हमने पहले ही फॉर्मूला में लिख दिया। क्या लिखा हमने फॉर्मूला में? देखो यहाँ पर हमने फॉर्मूला में क्या लिखा? बेसिक लूप इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक। मतलब लूप का जो डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन है? लिंक का डायरेक्शन पे से लूप का डायरेक्शन आया। दैट मीन्स लिंक जो है वो हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे डी के लिए 4 और यहाँ पे ई के लिए 5, ये दोनों हमेशा कैसे चाहिए हमको? ये दोनों हमेशा पॉजिटिव चाहिए, ये दोनों कभी भी निगेटिव नहीं रह सकते। इज इट क्लियर एवरीवन? ये दोनों क्यों निगेटिव नहीं रह सकते? क्योंकि डी के लिए 4 है और ई के लिए 5 है, तो ये डी के लिए 4 और ई के लिए 5 कभी भी निगेटिव नहीं रह सकते। ऑल राइट, सो अब इस पे से हमें डायरेक्शन सेट करना है कि निगेटिव कौन और पॉजिटिव कौन। राइट, सो देखो अब यहाँ पे डी में चले जाओ, ग्रीन वाले इससे मैंने डी का लूप बनाया है। देखो ग्रीन वाले लाइन से डी का लूप है, तो लूप के डायरेक्शन में जो जो एलिमेंट घूम रहा है वो एलिमेंट पॉजिटिव रहेगा, और लूप के डायरेक्शन में जो नहीं घूम रहा है
वो एलिमेंट नेगेटिव रहेगा। अब देखो लूप का डायरेक्शन कैसा है, नीचे, और ये 2 का डायरेक्शन कैसे है, ऊपर। लूप का डायरेक्शन कहाँ है, लूप का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। देखो लूप का डायरेक्शन कहाँ है, डी। डी में चले जाओ, देखो कहाँ है डी, ये डी यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। ऐसे करते समय कितने एलिमेंट्स को उसने कोइंसाइड किया, 4 2 1 3। सो 4 तो हमने पॉजिटिव ले ही लिया। अब जब 2 पे हम आएंगे तो 2 का डायरेक्शन ऊपर है और लूप का डायरेक्शन नीचे है, तो जल्दी से मुझे बताओ 2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी से बताओ अदर स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ 2? 2 का जो डायरेक्शन है वो ऊपर है और लूप का जो डायरेक्शन है वो नीचे है, तो 2 क्या चाहिए, 2 हमें यहाँ पर नेगेटिव चाहिए। वेरी गुड। सो 2 हमने यहाँ पर नेगेटिव कर दिया। अब 1 पे आ जाओ, देखो 1 का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन का क्या हाल है ना? 1 का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन दोनों सेम है। वेरी गुड। सो 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 3 पे आ जाओ, 3 का डायरेक्शन भी इस तरफ है और लूप का डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो 3 भी क्या होना चाहिए, 3 भी पॉजिटिव होना चाहिए। राइट, सो 3 भी हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव। ओके, समझ में आया सभी को? अब आते हैं हम ई पे। अब ई के लिए हमने ऑलरेडी 5 को पॉजिटिव कर रखा है। अब बचा कौन, बचा 2 1 और 3, बराबर। सो 2 1 और 3 देखो लूप के डायरेक्शन में अगर मूव हो रहा है तो पॉजिटिव करो, लूप के डायरेक्शन में अगर मूव नहीं हो रहा है तो नेगेटिव करो। वेरी सिंपल। ठीक है, सो लूप के डायरेक्शन में क्या है, देखो लूप नीचे की तरफ जा रहा है, मरून कलर का लूप है, ई का लूप, तो लूप का डायरेक्शन नीचे है, 2 का डायरेक्शन ऊपर है, तो 2 क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए नेगेटिव। सिमिलरली लूप ऊपर जा रहा है, 1 भी ऊपर जा रहा है, तो 1 भी होना चाहिए पॉजिटिव, और लूप राइट साइड में जा रहा है और 3 भी राइट साइड में जा रहा है, तो 3 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ऑल राइट, सो दिस कंप्लीट्स अवर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। बाकी के एलिमेंट्स को 0 से रिप्लेस करो। ओके, सो इस तरीके से हमें ये 6 का आंसर मिला। समझ में आया सभी को? कैसे हमारा ये 6th मैट्रिक्स जो है ये कंप्लीट हुआ। ओके, 6th मैट्रिक्स में किसी को कोई डाउट? बिकॉज दिस 7 मैट्रिक्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर यूनिट 1। यूनिट 1 का ये फर्स्ट पार्ट है। अगर ये समझ में आया आपको तो एमसीक्यू के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप लोग। अगर नहीं समझ में आया तो एमसीक्यू के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। मैट्रिक्स इज अवर लास्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नंबर 5। सो मैट्रिक्स नंबर 7। सो आई विल राइट हियर द लास्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नंबर 7। सो इस मैट्रिक्स को कभी कभार ओपन लूप भी बोला जाता है, ठीक है, या ऑगमेंटेड लूप भी बोला जाता है। ओपन लूप और ऑगमेंटेड लूप, open loop or augmented loop incidence matrix. All right, so this matrix is denoted by the nomenclature C and a dot over it. ठीक है, मतलब C के ऊपर एक डॉट दे देंगे हम तो हमारा मैट्रिक्स बनेगा augmented loop incidence matrix। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, देखो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। हमने लास्ट मैट्रिक्स से डी और ई का जो कॉलम है वो एज इट इज लेना है। बाकी पूरे जो टर्म्स है पहले हमने लिख लेना है, 1 2 3 4 एंड 5। ये हम क्यों लिख पाए, क्योंकि हमारे पहले के एलिमेंट ब्रांचेस थे और बाद में के एलिमेंट्स लिंक थे। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या करना है, हमने लास्ट प्रॉब्लम में लास्ट मैट्रिक्स में डी और ई लिखे थे कि नहीं लिखे थे? लास्ट प्रॉब्लम में हमने डी और ई लिखे थे कि नहीं लिखे थे? डी और ई किसके लिए था, लिंक के लिए था। तो ऑब्वियसली डी और ई के पहले क्या आएगा, डी और ई के पहले आएगा ए बी और सी, तो वो हमने यहाँ पर लिख लेना है। डी और ई के पहले ए बी सी वो हमने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमने प्रीवियस वाले मैट्रिक्स से पहले डी और ई का कॉलम फिल कर लेना है देख देख के। ठीक है, तो प्रीवियस वाले मैट्रिक्स पे जाते हैं हम। प्रीवियस वाला मैट्रिक्स हमारा ये है ना। सो 1 -1 1 1 0, फिर 1 -1 1 0 1, ये हमने पहले डी और ई का कॉलम फिल कर लेना है।
ठीक है, तो वो मैं फिल कर लेता हूँ। 1 -1 1 1 0 1 -1 1 0 1। ये मैंने प्रीवियस वाले मैट्रिक्स से देख देख के लिखा। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है, इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा? सी डॉट। सी डॉट विल बी इक्वल टू, ए के लिए 1 को पॉजिटिव करो, बी के लिए 2 को पॉजिटिव करो, सी के लिए 3 को पॉजिटिव करो, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि हमने ए के लिए किसको नाम दिया था? 1 को, बी के लिए किसको नाम दिया था? 2 को, और सी के लिए किसको नाम दिया था? 3 को। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स जो है उनको 0 से रिप्लेस करो। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? ये बन जाएगा हमारा 7th मैट्रिक्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ द 7th मैट्रिक्स। इज इट क्लियर एवरीवन? ओपन लूप और ऑगमेंटेड लूप कैसे आया? ओपन लूप या ऑगमेंटेड लूप आने के लिए पहले हमें बेसिक लूप आना जरूरी है। ठीक है, यहां तक का जो पोर्शन है, ये देखोगे आप, ये वाला जो पोर्शन है ये कहां से मिला मुझे? ये मिला मुझे बेसिक लूप वाले मैट्रिक्स से। ठीक है, और फिर जब हम इसको कंबाइन करेंगे पूरे को तो बनेगा वो ऑगमेंटेड लूप। इज इट क्लियर एवरीवन? सो इफ यू आर क्लियर विद द बेसिक लूप, तभी आपका जो ऑगमेंटेड लूप का मैट्रिक्स है वो सही से बनेगा, अदरवाइज वो सही से नहीं बन पाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? नोमेनक्लेचर देते समय हम हमेशा कैसे नोमेनक्लेचर देते हैं? 1 के लिए ए, 2 के लिए बी, 3 के लिए सी, देन 4 के लिए डी और 5 के लिए ई। ऐसे हमने नोमेनक्लेचर दिया है, जिसमें से 4 और 5 का जो मैट्रिक्स है वो हमने ऑलरेडी भर लिया है पहले ही। ठीक है, अब कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ क्या करना है, ए के लिए 1 को पॉजिटिव करना, बी के लिए 2 को पॉजिटिव करना, सी के लिए 3 को पॉजिटिव करना, दैट्स इट। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी जाएगा दूसरे तीसरे प्रॉब्लम में और ये चीजें क्लियर होते जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो नाउ वी विल टेक वन सेकेंड प्रॉब्लम जो कि आप लोगों को करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम का हेल्प लेना है और सेकेंड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। ओके, so let me give the second problem. Just wait for a minute, I will give the second problem. Okay, so what I will do is for the second problem के लिए मैं क्या करूंगा आप लोगों को, second problem के लिए मैं आपको ग्राफ बना के दे देता हूं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, उस ग्राफ का हेल्प से आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। डन हो जाएगा सबका? ग्राफ बना के दे दूंगा मैं आपको, उस ग्राफ से आप लोगों को ये सारे मैट्रिक्स बनाने हैं जो अभी इस पहले प्रॉब्लम में हमने बनाया है। ओके, सो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। ओके, सो दिस इज अवर second problem and this is a problem which is asked in the ग्राफ सबको दिख रहा है? इज इट विजिबल टू एवरीवन? इज द ग्राफ विजिबल टू एवरीवन? तो इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन पेपर सेटर ने आप लोगों को ऑलरेडी ग्राफ बना के दे दिया है। ग्राफ में एलिमेंट्स भी नोट करके दे दिया है, देन कौन सा एलिमेंट ब्रांच है, कौन सा एलिमेंट लिंक है, ये भी डिनोट करके दे दिया है। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, मैट्रिसेस बनाना है। सो मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पर ब्रांच कौन कौन से है, ब्रांच का सेट क्या क्या है। कोई बताएगा? जल्दी से रिप्लाई करो, कौन कौन से ब्रांच किया। सो 1 2 and 5 these are the branches. What about link? Link are 3 and 4. This is the sequence. अब मुझे बताओ, जब आप मैट्रिक्स लिखोगे तो मैट्रिक्स लिखने का आपका जो पैटर्न है वो बदल जाएगा पहले प्रॉब्लम के हिसाब से। पहले प्रॉब्लम में हम डायरेक्टली 1 2 3 4 5 ऐसे लिख पा रहे थे, अब लिख पाएंगे क्या? जल्दी से बताओ मुझे, अब लिख पाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि लिखते समय हमें क्या लिखना पड़ता है, पहले हमें ब्रांच लिखना होता है और बाद में लिंक लिखना होता है। तो मैं सिर्फ एक मैट्रिक्स का पैटर्न यहाँ लिख के बताऊंगा, आप लोगों को उसके हिसाब से ही काम करना है।
अपने मर्जी से आप लोग यहाँ 1 2 3 4 5 नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच कौन कौन दिया हुआ है, ब्रांच दिया हुआ है 1 2 5 और लिंक दिया है 3 4। तो आप लोगों को लिखते समय भी उसको पहले ब्रांच और बाद में लिंक ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख दिया तो आपका पूरा मैट्रिक्स, तो इस तरीके से हमने लिखना है। पहले ब्रांचेस, ये जो 3 एलिमेंट है ये हमारे ब्रांचेस है, और ये जो 2 एलिमेंट है ये हमारे क्या है, ये 2 एलिमेंट हमारे लिंक है। तो लिखते समय हमने इस पैटर्न से ही लिखना है। सारे मैट्रिक्स जितने भी लिखोगे आपको इसी पैटर्न से लिखना है। सिर्फ के में हमें ब्रांचेस का ही काम होता है, तो के जब लिखोगे तो के लिखते समय सिर्फ हमारे मैट्रिक्स में आएगा 1 2 5, 3 और 4 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ब्रांच पाथ इंसिडेंस मैट्रिक्स में सिर्फ ब्रांचेस लिखा जाता है, लिंक नहीं लिखा जाता है। ऑलराइट, सो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों को होमवर्क करना है। कल सबने अपने जो होमवर्क है वो क्रॉस चेक कर लेना है जब मैं आंसर्स बताऊंगा एक एक करके तब। ठीक है, कल मैं ये सारी चीजों के आंसर्स बताऊंगा आप लोगों को, मैट्रिक्स लिख के दूंगा। मैं प्रोसेस नहीं बताऊंगा कैसे आया क्यों आया, ये आप लोगों ने अपने कॉपी में होमवर्क करना है ना। होमवर्क करोगे तभी आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे लेना है ये मैट्रिक्स को, है ना। तब जिसमें डिफिकल्टी आएगी वो क्लियर कर लेना है ना। जैसे डिफिकल्टी एट द मैक्स किस में आ सकती है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। डिफिकल्टी आ सकती है आपको बेसिक कट सेट ढूंढने में, है ना। बेसिक कट सेट का रूल क्या बताया कि जब काटोगे तो उस पर्टिकुलर ब्रांच के साथ में बचे हुए लिंक कटने चाहिए, है ना। तो बेसिक कट सेट कैसे बनेंगे, बेसिक कट सेट 3 बनेंगे, ए के लिए 1, 2 के लिए बी और 5 के लिए सी, ऐसे बनेंगे, है ना। तो बेसिक कट सेट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट वहां पर भी जो मैंने रूल बताया है वो रूल फॉलो करो। बेसिक कट सेट काटते समय एक ही ब्रांच कटना चाहिए, बाकी के लिंक कटने चाहिए, है ना। तो एक मैं यहाँ पे तीनों मैं काट के दे देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो। 1 को काटोगे तो 1 ऐसे कटेगा, इसका नाम रहेगा ऐसे ए, ठीक है। 2 को काटोगे तो ऐसे कटेगा, इसका नाम ऐसे रहेगा बी। और 5 को काटोगे तो 5 ऐसे काटना पड़ेगा क्योंकि 5 के साथ में 2 लिंक कटने चाहिए। अगर आप ऐसे काटोगे तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। क्यों? अगर ऐसे काटोगे तो 5 के साथ में 2 कट जाएगा, और 5 और 2 दोनों ही क्या है, ब्रांच है, तो इसीलिए आपको काटना ऐसे पड़ेगा। और नाम आपको देते समय ब्रांच के हिसाब से देना पड़ेगा ऐसे।